अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि उसने मुझे बोला कि मैं CFP करूँ कि CFA करूँ। हाँ, ये बहुत क्वेरीज हाँ, यस। तो मैंने उसका पहले बैकग्राउंड चेक किया, तो मुझे पता चला कि उसके जो पेरेंट्स है दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर हैविंग गुड AUM। तो मैंने उसको बोला कि यू डू CFP फर्स्ट, understand the business by working with them, and then you do CFA and develop your business in a corporate one. NISM सर्टिफिकेशन के अंदर इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो पहले तो कि कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए? कॉलेज का स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में जाना है तो ये 4 सर्टिफिकेट्स आप ले लो, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। लेकिन आपको एक प्रॉपर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो NISM का रिसर्च एनालिस्ट का एक एग्जाम होता है, वो आप एग्जाम दे सकते हो। NISM NCFA में क्या डिफरेंस? Actually both are the platforms, but NISM is under the SEBI and NCFM is related with NAC. तो बहुत सारे लोग अभी कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, NISM के NCFA? डिपेंड्स आपको करना क्या है। अगर मुझे टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो आई हैव टू गो फॉर NCFM, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो एग्जामिनेशन है। और अगर मुझे रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आई हैव टू गो टू NISM. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CWM and CFP? Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams in finance like CFA, FRM and SCR. And as a part of that, I am talking to a variety of people, getting different perspective about career and bringing it to you. And today I have with me Jitendra sir. He has a vast teaching experience and he has taught NISM certification exams, CFP and CWM. And today's conversation is going to be more about what is teacher's perspective and what is the student's perspective. Okay, so Jitendra sir, first of all, thank you very much join करने के लिए. आप एक मुझे ब्रीफ दे पाएंगे आपका जो करियर जर्नी रहा है अभी तक, ताकि ऑडियंस आपके बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले पाए. Yeah, thank you very much Ganesh ji for inviting me here for the podcast and all. Basically after means till 10th standard there was nothing like competitive world or the problem and this and that. Actual problems are started from 10th standard onwards. Okay. I scored good marks in my 10th standard and I was interested to go for engineering and all. But reality is different and our dreams are different. Right. So reality shown me that though you are having good knowledge, good percentage and all, you don't have money. So you are not going to do what you want to do. Right. And from there I had started working full day and I started night college. Means my journey started from night college. 11th and 12th. 11, 12, FY, SY, TY. Whoa. So till graduation I was working full day and doing my college in the night lab. Means in the night college I did my graduation and all. After that means when I was working, I was doing my apprenticeship in BST. So I scored good marks there also, but I didn't get any job there. So I started teaching to students. Okay. Initially only 4 students were there with me, and out of those 4 students, 2 students were only my brothers, means the younger brothers. But after that everything had changed because everybody was interested in learning and I was very very good in teaching what they want to learn. Means say for example whatever happens कि बहुत बार तो बच्चे को सीखना है बट टीचर उसको सिखा रहा है बट उसको क्या प्रॉब्लम है ये नहीं सिखा रहा है. उसको मैथ सिखा रहा है बट इसको मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं सिखा रहा है. समझा. सो मैंने वो चीज बहुत जल्दी समझ ली थी कि इसका प्रॉब्लम 9th स्टैंडर्ड नहीं है, इसका प्रॉब्लम 5th स्टैंडर्ड है. बेसिक क्लियर नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है. मतलब जब वो 8th स्टैंडर्ड में होता है तो 8th स्टैंडर्ड का टीचर क्या बोलता है कि आपको तो 7 तक का तो मालूम है, आपने तो एग्जाम दिया था, तो चलो अभी इधर से स्टार्ट कर दे. अब स्टूडेंट को 7th का भी नहीं आ रहा है. ओके. सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज टीचिंग हिम राइट फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड. मैंने नोट्स बनाए थे खुद के कि 5th में क्या था, 6th में क्या था, 7th में क्या था, 8th में क्या था, एंड फिर 9th स्टार्ट करता था मैं. तो बच्चे का जो बेस था ना वो क्लियर हो जाता था. एंड जब आप 9th में होते हो और आप 5th का देखते हो ना तो ईजी लगता है, 6th का भी ईजी लगता है. राइट. एंड जब उसको हाँ और कॉन्फिडेंस के साथ साथ जब उसको ये पता चलता है कि ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने की है, इट्स वेरी सिंपल, तो वो 9th में कॉन्फिडेंटली आ जाता है. तो वहां से फिर मैंने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत आगे गए. मेरे बच्चे आज की डेट में CA है, CS है, MBA है, डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट वगैरह, मतलब MDS वगैरह है,
Wow. MS किया है, MTech किया है बहुत बहुत सारे बच्चों ने। तो ये सारी चीजें मैंने आप की। लेकिन तब स्कूल सेक्शंस को पढ़ा रहे थे? हाँ, पहले मैं स्कूल सेक्शन को पढ़ाता था। Okay. फिर आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन एंड ऑल, आई हैड स्टार्टेड टीचिंग द other students like 11th 12th and all, and simultaneously I had started doing my education correspondence, means with the help of like directly going to the universities and doing the education and all. तो मैंने MCOM किया, फिर MBA किया, MA इकोनॉमिक्स किया, एंड आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। आपने फिर टीचिंग स्टार्ट कब की, कौन से ईयर में की? टीचिंग मैंने स्टार्ट की 1997 में, when I was in FY BCom. Just FY BCom was ending, and at that time I had Start started कर दिया। teaching in 1997. तब से अभी तक पढ़ा तब से अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। नियर अबाउट 27-28 ईयर्स हो गए अभी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर ट्रांजिशन का फेज भी आ जाता है, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द फाइनेंस फील्ड। एक्चुअली इन 2005 when I had completed my MCom part 2, on that day in the evening I decided I'm going to work in the world of finance, and then according to that मैंने सारा पढ़ाई स्टार्ट किया, पढ़ाना भी वही स्टार्ट किया, मतलब पढ़ना भी वही स्टार्ट किया। तो आपने जॉब किया? जॉब नहीं किया मैंने जॉब मैं थोड़ा टेक्निकल साइड में था BST में, तो मैंने गोदरेज में थोड़ा सा जॉब किया था 3 महीने, और उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया कहीं पे। टीचिंग ओनली, टीचिंग माय ओन क्लासेस वेयर देयर, आई वाज जस्ट टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो मैंने जॉब वगैरह कभी ज़्यादा किया नहीं है। तो टीचिंग में मुझे एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या लगा कि आई एम हैविंग द पावर ऑफ चेंजिंग द सोसाइटी। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना, तो आप बड़े इंसान को कितना भी समझाओगे, ही विल एक्सेप्ट बट ही विल नॉट डू दैट, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। राइट। बट अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर आप पढ़ाते हो, उसको बताते हो, तो वो इम्प्लीमेंट भी करेगा और सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाने में उसका फायदा होगा। करियर, आप किसी का करियर भी Yes. बना रहे हो, राइट। और उसको उस चीजों की समझ भी होती है, वो हमें एज अ टीचर देखता है ना, तो वो हमें फॉलो भी करता है। उसकी भी इच्छा होती है कि यस मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा, तो हम बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं। एंड दैट्स वाई आज भी मैं टीचिंग को छोड़ता नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, बट पढ़ाना मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज हैविंग द पावर टू चेंज द सोसाइटी। फिर आप जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज है, NISM हो गया, CFP, उस तरफ कब पहुंचे? 2019 में आई ज्वाइन वन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वो सेशंस लेते थे, बताते थे रिलेटेड अबाउट फिनांस एंड रिलेटेड विद द करियर एंड ऑल। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर मुझे इस फील्ड में एक्सेल करना है, देन आई हैव टू गो फॉर CFP। So I started doing the preparation of CFP, but then Corona hit, and then also I didn't stop. But 4-5 months were there like कि nothing was going on, online examinations भी नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। तो मैंने उस समय बहुत पढ़ाई किया, उस टाइम को मैंने पूरा यूटिलाइज किया। मैंने उस टाइम पे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं देखा। ऐसे भी मुझे बाकी की चीज़ों का कोई शौक तो है नहीं, तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें भी नहीं, तो मेरा पूरा टाइम जो मुझे इतने सालों से कभी टाइम नहीं मिला, वो टाइम मुझे उस वक्त मिला। तो फिर मैंने CFP कवर किया, उसके बाद मैंने रिसर्च एनालिस्ट किया, टेक्निकल एनालिस्ट किया, फिर मैंने कैपिटल मार्केट डीलर्स मॉड्यूल किया NCFM का, फिर मैंने उसके बाद 10A 10B किया NISM का। और ऐसे करते 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 मैं आगे बढ़ा। फिर मुझे पता चला कि अगर आपको PMS में काम करना है, तो यू शुड बी हैविंग PMS। तो मैंने वो 21A जो होता है PMS का, वो भी सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया। उसके बाद डेरिवेटिव्स में तो मुझे पहले से बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम दे दिया, वो क्लियर किया। ये सब कोरोना के टाइम पे ही, कोरोना के आजू बाजू, मतलब 2021 22 उस समय में। हाँ, और फिर मैंने कॉमन डेरिवेटिव्स भी कर लिया। कॉमन डेरिवेटिव्स तो उसमें तो सब आ जाता है, फिर वो भी मैंने किया। देन फिर मैंने सोचा कि CWM को भी क्यों छोड़े, तो फिर मैंने वो CWM भी स्टार्ट किया। तो एक्चुअली जब मैं CFP कर रहा था, तब भी मुझे बताया गया था कि आपके पास ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन है, यू आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन दिस फील्ड ओनली, सो यू आर हैविंग डायरेक्ट एंट्री इन द फाइनल। लेकिन मैंने बोला नो, इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन एनी फील्ड, देन आई हैव टू गो फ्रॉम रूट। तो आई हैड गिवन ऑल द लेवल्स। Even in CWM also I was able to or eligible for the second level directly. तो वहाँ पे भी मैंने वैसे नहीं किया। I had given first level, then उसका project, then second level उसका project, and I had completed my CWM. Okay. So this is something like that. Then I got the opportunity in 2021 itself, teaching students of CFP. So I started teaching them. So till today, near about 65 students are there who had completely done the CFP and all. Wow. And there are many others also who had completed 1 or 2 or 3 modules.
and they had not completed the CFP, but they are on the way of way doing of it. completing it. Okay. Yes. Now for the audience, जैसे एक NISM सर्टिफिकेशन के अंदर इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो पहले तो कि कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए? कॉलेज का स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, एक्चुअली ये इजीएस्ट कौन सा है जो वो खत्म कर सकता है हाँ, पहले? ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना अगर आप NISM के सारे कोर्सेज देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसा कुछ नहीं राइट, है। हाँ, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव्स, then you can go for equity derivatives, currency derivatives, commodity derivatives, and interest rate derivatives. Even you can go for the combined examination 13, NISM 13 examination, which is related with the combined derivatives. आप वो दे सकते हो। अगर कोई पर्सन है who is interested to do a registered investment advisory, then he can go for 10A 10B. एक आप ना इसको जरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। हाँ, फॉर एग्जांपल, हाँ, जितने भी आपने अभी सर्टिफिकेशंस बताए कि ये सर्टिफिकेशन करने से आप इस रास्ते फील्ड पे में जा सकते हैं। सकते हो। ये आप थोड़ा मुझे हाँ, मतलब अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में जाना है, तो ये 4 सर्टिफिकेट्स आप ले लो: इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो आपको मतलब उसका पहला फायदा तो ये होता है कि इतना सब रीड करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, नॉलेज लेवल बढ़ जाता है, एंड देन यू विल बी गेटिंग द एंट्री डायरेक्टली इन दैट फील्ड। देन 2 टाइप से आप एंट्री ले सकते हैं। तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, या आप जो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ ज्वाइन हो जाओ एंड यू स्टार्ट वर्किंग देयर। अभी समझो कोई पर्सन ऐसा है कि उसको सिर्फ एक सेगमेंट में काम करना है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल ही इज फोकसिंग ऑन ओनली ऑन द रिटायर्ड पीपल, तो रिटायरमेंट के बेसिस पे एक मॉड्यूल है NISM में, आप सिर्फ उतना कर सकते हो। समझो कोई ऐसा है कि वो बोलता है कि मुझे कुछ बेचना नहीं है, मुझे एडवाइस करना है, तो वो एडवाइजरी में जा सकता है, और एडवाइजरी में जाने के लिए उसको RIA करना पड़ता है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना पड़ता है। एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू कंप्लीट 2 एग्जामिनेशंस, 10A 10B। दिस इज द सेम सर्टिफिकेशन कि आप स्टॉक का अगर रिकमेंडेशन देते हो तो आपको करना नहीं, वो हाँ, मतलब आप एडवाइजरी में यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, उसका रिस्क प्रोफाइल आप देखते हो, अच्छा, उसके गोल्स क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है गोल्स का, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, उनका इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, उनके पास कितना टाइम शेड्यूल है या कितना टाइम ड्यूरेशन बाकी है। अकॉर्डिंग टू दैट आप उनको गाइड करते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको आपका इमरजेंसी फंड कैसे तैयार करना पड़ेगा, आपको आपका स्टेट प्लान कैसे करना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना है, विल बनाना है, आपके डिफरेंट गोल्स है। सबसे पहला तो रिटायरमेंट गोल है, क्योंकि रिटायरमेंट तो आने ही वाला है। बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का मैरिज है, वेकेशन है, या फिर कुछ हमारे ऐसे भी गोल्स होते हैं कि मुझे एक फार्म हाउस लेना है, एक बड़ा कार लेना है। तो ये सारी चीजों को अचीव कैसे किया जाए वो आपको पूरा एडवाइस करता है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस इज 10A and 10B। 10A and 10B। ओके, उसके हाँ, अलावा उसके अलावा समझो अभी आपको PMS में काम करना है, एंड PMS में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो उसमें 21A का एग्जाम होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन। बट आप बोलते हो कि मुझे उसमें रिसर्च में भी जाना है PMS में, तो PMS 21B होता है जो मैनेजर से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च वगैरह में वो उतर सकते हैं, ओनली इन PMS। ओनली इन PMS। लेकिन आपको एक प्रॉपर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो NISM का रिसर्च एनालिस्ट का एक एग्जाम होता है, वो आप एग्जाम दे सकते हो, एंड फिर उसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हो। अभी कोई आज के डेट में लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो NCFM का टेक्निकल एनालिस्ट का कोर्स होता है, आप वो कोर्स कर सकते हो। मतलब वो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन लेने के बाद 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, एक तो आप खुद का बिजनेस करो, या फिर आप किसी ट्रेडिंग फर्म में ज्वाइन कर लो। जो आजकल लोग कैंडल स्टिक्स वो सब देख के यस, उसका पूरा नॉलेज आपको उसमें मिलता है, मतलब मैक्सिमम चीजें आपको वहां पे पता चलती है। ओके, हाँ, बट मेरा वहां पे एक एडवाइस रहेगा, एक कोई भी एग्जाम आप क्लियर करो, बट एग्जाम क्लियर करने के लिए मत करो, आप स्टडी करके एग्जाम क्लियर करो। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि NISM हो या NCFM हो, दे आर गिविंग यू द वर्कबुक, देयर आर मेनी पीपल दे आर जस्ट नॉट रीडिंग दैट, they are just going for question answer mock test and all, and they are solving it and they are getting passed. But वहां पे क्या होगा कि you will be getting the certificate but you will not be able to work because you don't have knowledge. तो आपको पहले रीड करना है, मॉक टेस्ट इज गुड, बट आपको रीड करना है, कम से कम 3 से 5 बार आप रीड करो, उसे समझो, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी फील्ड देयर आर 2 क्राइटेरिया बेसिकली, एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया विच इज रिलेटेड विथ योरसेल्फ,
and the another is related with the client. If you are a knowledgeable person, then you will be able to do the justice with both, with yourself as well and the client. Okay. क्योंकि क्लाइंट को तो कुछ मालूम नहीं है ना, तो आपको ही उनको गाइड करना है. Right. एंड अगर वो नॉलेज आपके पास होगा अच्छा, तो आप खुद को भी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो. Right. तो इसके लिए आपको पहले पढ़ाई करना जरूरी. रीड करो 3 to 5 टाइम्स, रीड करो. डोंट गो फॉर बाय हार्टिंग एंड ऑल, जस्ट रीड इट. तो आपका बहुत फायदा होगा. इवन उसमें अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको और बड़े लेवल पे जाना है, तो जैसे CFA होता है, वैसे रिलेटेड विद द टेक्निकल एनालिसिस भी एक बड़ा एग्जाम होता है. तो आप वो एग्जाम भी दे सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि आप डायरेक्टली उधर जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. Right. तो थोड़ा आप एक्सपीरियंस ले लो, काम करो और फिर जा सकते हो वहां पे. Okay. इवन अगर आपको समझो इक्विटी में काम करना है, बट आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करना है, तो एक एग्जामिनेशन होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता Mutual fund है. distributor. नहीं, नॉट म्यूचुअल फंड, इक्विटी रिलेटेड अच्छा. डीलर्स मॉड्यूल होता है वो हाँ, NCFM equity में. dealer, हाँ, yes, yes. इक्विटी. यहाँ पे एक हाँ. सॉरी सर, ये NISM फॉर ऑडियंस, NISM NCFM में क्या डिफरेंस? Actually, both are the platforms, but NISM is under the SEBI and NCFM is related with NAC. एग्जाम सेम है दोनों के? दोनों के एग्जाम सेम, मतलब टाइप स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सिर्फ बॉडी अलग है. यहाँ पे NISM है, यहाँ पे NCFM है. देयर आर मेनी कोर्सेस आर इन NISM, देयर आर मेनी कोर्सेस इन द NCFM एज वेल. बहुत बार ऐसे होते हैं कि कुछ कोर्सेस आपको सिर्फ NISM में ही मिलेंगे. जैसे कि मुझे रिसर्च एनालिस्ट करना था तो मैंने NISM में से किया, बट मुझे टेक्निकल एनालिस्ट करना था तो मुझे NCFM में जाना पड़ा. तो बहुत सारे लोग अभी कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, NISM के NCFM? डिपेंड्स आपको करना क्या है. अगर मुझे टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो आई हैव टू गो फॉर NCFM, क्योंकि वहां पे मुझे वो एग्जामिनेशन है नहीं. और अगर मुझे रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आई हैव टू गो टू NISM. तो वहां से मुझे मैं कर सकता हूँ. इवन ज्यादा सर्टिफिकेशन NISM में है? NISM में है, बिकॉज NCFM में भी है. NISM के ही नाम ज्यादा सुनता हूँ हाँ, बाहर जब लोग बात कर रहे हैं. एक्चुअली NISM बना ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअली NISM बनने का पहला रीजन तो यह है कि इन्वेस्टर को आप अच्छा गाइड कर सको. Right. और इन्वेस्टर को आप अच्छा गाइड तभी कर सकोगे व्हेन यू आर नॉलेजेबल. बट हाउ कैन वी डिसाइड कि यू आर नॉलेजेबल और नॉट? देन दिस एग्जाम इज देयर. इफ यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम मींस यू आर हैविंग गुड नॉलेज, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट प्रॉपरली. इसलिए वो एग्जामिनेशंस है. अब आपने CFP भी पढ़ा है, खुद भी किया है, तो CFP होता क्या है, किस तरीके से वो क्लाइंट को हेल्प करता है, एक अगर आप एक ओवरव्यू दे सकते हो तो. बेसिकली CFP इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. इसका जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो FPSB है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड USA. अब जब whenever we are talking about CFP, it is a professional course. And it is giving you the, first of all, now it is giving you the ethical side. It is showing you the ethics, like how you have to handle your client first. Okay. Means you should not sell anything for earning commission. You have to sell anything for helping the client to achieve his goal. Okay. Because earning commission is a secondary one, a byproduct. You should not be focusing on that. Okay. And if you are able to take care of your client properly, if you are able to help him achieve his goal, definitely you will be getting more commissions, more clients and all. So वो आपको वहां पे प्रोफेशनल कोर्स पहले बताता है कि हाउ एथिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड चीज क्या है कि व्हेन यू आर बिकमिंग CFP, यू आर हैविंग गुड नॉलेज, बेस्ट नॉलेज में भी. क्योंकि ना कैसे होता है कि सेल करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल, व्हाई टू सेल, ये समझना इज अ डिफरेंट थिंग. There are many people in the world, they are selling, they are doing well, they are earning a lot. But is it useful for the person to whom you are selling it? वो आपको ये CFP बताता है. अब CFP में आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कैसा है, उसका रिस्क रिटर्न एडजस्टेड सिचुएशन क्या है, उसका रिस्क कितना है, कौन से टाइप के क्लाइंट के लिए वो जरूरी है, वो सारी चीजें आप वहां पे सीखते हो. Okay. आपको समझ में आता है कि इक्विटी प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, डेब्ट प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, या फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, उनका इंटर रिलेशनशिप कैसे होता है, ये आपको मालूम होता है. जब आप, हाँ सर, इसमें CFP जो कोई करता है उसको क्या टाइप के जॉब्स लग सकते हैं? बेसिकली जॉब्स तो 2 टाइप के जॉब्स तो इजीली हम बोल सकते हैं. पहला जॉब तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हो,
एंड दूसरा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स है या फिर म्यूचुअल फंड के डिफरेंट डिफरेंट जो हाउसेस है, एएमसीज है, आपको वहां पे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। मतलब इफ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन यू कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि यू आर हेल्पिंग समबडी बिकम वेल्दी। मतलब जो सबसे मतलब मैं यहाँ पे क्यों आया, द रीजन वॉज दैट ओनली कि यू आर हैविंग गुड परसेंटेज बट यू डोंट हैव मनी, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वेल्थ क्रिएट करने में वो पर्सन आपको हेल्प करेगा, सीएफपी आपको हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन एंड ऑल। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि देयर आर मेनी पीपल दे आर सेइंग कि मुझे एक बड़ा कार लेना है, कार लेना इज माई ड्रीम, बट ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते अनलेस एंड अनटिल यू कन्वर्ट दोज ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। अब यहाँ पे ये मेन जो डिफरेंस है ना वही आपको सीएफपी में बताता है कि ड्रीम में मतलब कि मुझे कार परचेस करना है, बड़ा कार परचेस करना है, बट कब परचेस करना है, कितने का परचेस करना है, उसके लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। मतलब अगर कोई बोलता है कि मुझे 10 साल के बाद लेना है तो यू आर गेटिंग अ टाइम ड्यूरेशन। तो आज उस कार का प्राइस 1 करोड़ है तो 10 साल के बाद कितना होगा, इन्फ्लेशन वहां पे रोल प्ले करेगा। तो उतना पैसा उस वक्त आपके पास होना चाहिए और उतना पैसा उस वक्त होने के लिए आज से यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। राइट। तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये पूरा का पूरा चीज सीएफपी एक क्लाइंट के लिए देखता है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको वो बना रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ क्लाइंट एंड उससे फायदा होगा तो आपको फायदा होगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CWM एंड CFP? Basically, I am always saying कि CFP and CWM don't look at them as a competitors. Look at them as a complementary with each other. कैसे कि अगर आपको यहाँ पे CFP में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीख रहे हो प्रॉपरली, आपको मालूम है कि कैसे आपको उसको वेल्थ जनरेट करके देना है। इवन CWM में आपको वेल्थ क्रिएटेड अगर है तो उस वेल्थ को डेवलप कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, स्टेट प्लानिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। मतलब इन शॉर्ट कैसे कि बोथ आर हेल्पिंग यू टू डेवलप, टू क्रिएट एंड टू सस्टेन। बहुत बार कैसे होता है कि हम डेवलप तो कर सकते हैं, क्रिएट होता है, सस्टेन नहीं हो पाता, इवन सस्टेन होने के बाद वो ट्रांसफर नहीं हो पाता नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो वो कैसे प्लान करना है, ये कैसे प्लान करना है उस स्टेट को। मतलब जस्ट इमेजिन कि देयर इज वन पर्सन हु हैड टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन हिज लाइफ एंड क्रिएटेड अ ह्यूज वेल्थ। अब उसका डेथ हो जाता है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़कियां या दोनों लड़कियां, व्हाटएवर, उनमें डिस्प्यूट हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ मनी ब्रदर्स व्हाटएवर। नाउ अगर उसको स्टेट प्लानिंग मालूम है, उसने जाने से पहले ही स्टेट प्लान करके रखा है, ट्रस्ट बनाया है, विल बनाया है, तो इनमें डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी जाके बताया कि इसको ये देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें आपको ये प्रोफेशनल कोर्सेज बताते हैं। एंड ये प्रोफेशनल क्यों है मालूम है? फर्स्ट ऑफ ऑफ कोर्स नॉलेज है, यहाँ पे स्किल है, एंड यहाँ पे एथिक्स है। आपको उल्लू बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, वो आपको डेवलप करने के लिए किया जाएगा। राइट। और यही चीज यहाँ पे पहले बताई जाती है कि आपको कैसे क्लाइंट के बारे में सोचना है, क्लाइंट फर्स्ट, यू आर सेकेंड, क्लाइंट फर्स्ट, ये बताया जाता है। अभी एक स्टूडेंट, जैसे अभी आपने इतना साल टीचिंग किया है, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि एक स्टूडेंट के दिमाग में करियर पर्सपेक्टिव से कहाँ क्वेरीज होती है और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है? सबसे पहले तो ना स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेरी है उसे खुद मालूम नहीं होता कि मुझे करना क्या है। अभी इसमें हम उसे दोष तो नहीं दे सकते बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होता तो उसे पता चलता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि उसने मुझे बोला कि मैं CFP करूँ कि CFA करूँ। हाँ, ये बहुत क्वेरी। हाँ, यस। तो मैंने उसका पहले बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे पता चला कि उसके जो पेरेंट्स है दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर हैविंग गुड AUM, और उनका वो इकलौता बेटा है। तो मैंने उसको बोला कि यू डू CFP फर्स्ट, अंडरस्टैंड द बिजनेस बाय वर्किंग विद देम, एंड देन यू डू CFA एंड डेवलप योर बिजनेस इन अ कॉर्पोरेट वन। तो CFP की वजह से क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है वो हैंडल करने की आप में ताकत आ जाएगी, एंड उसको कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको CFA हेल्प करेगा। राइट। तो अब ऐसे जाओ।
अगर कोई पर्सन है जिसको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, रिटेल लेवल पे उसे काम करना अच्छा लगता है, तो CFP विल बी द बेटर ऑप्शन। बिकॉज आप रिटेल एंड पर्सनल फाइनेंस में यस, पर्सनल फाइनेंस। बट अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो उसे कॉर्पोरेट लेवल पे ही काम करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, या उसे ऐसे लेवल पे काम करना है जहाँ पे रिसर्च है, तो उसे CFA करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव ही वही है। राइट। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में, उसका सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन है। तो पहले तो उसको इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है कि क्या क्या है मार्केट में और उसमें से फिर मेरे लिए अच्छा क्या है। इट्स लाइक जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा एक बात बताते हैं कि एवरी प्रोडक्ट इज अ नाइस प्रोडक्ट। आपके लिए नाइस है क्या? ग्रेट। इट्स लाइक यू नो कि यू आर गोइंग इनटू द मार्केट एंड वहां पे एक अच्छा सा शर्ट है, शर्ट बेस्ट है, बट वो आपके साइज का नहीं है, या फिर आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर नहीं है, या आपको फुल शर्ट चाहिए और वो हाफ शर्ट है। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट मतलब हर एक जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी है वो आपके लिए अच्छा है क्या। मतलब से फॉर एग्जांपल देयर इज वन पर्सन वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग लीगल स्टडीज, तो ऑफ कोर्स LLB करना चाहिए, बट ही टोल्ड कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिटिगेशन। तो फिर उसको वो करके फायदा ही नहीं है। तो उसको ऐसा लॉ में ही एक ऐसा फील्ड देखना चाहिए जहाँ पे लिटिगेशन नहीं है, जहाँ पे वो जाएगा, बैठेगा, काम करेगा, घर पे आएगा। राइट। इट्स लाइक दैट। तो पहले तो आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में अगर हम देखेंगे, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड वैरायटीज। यस, अभी तो बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ है। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आपको मतलब आप रिलेटेड फील्ड्स के जो लोग होते हैं उनके साथ भी अगर आप बैठते हो, बात करते हो, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, आपके लिए अच्छा क्या है। लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है तो आपके लिए अच्छा क्या है, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है तो आपके लिए अच्छा क्या है, आप जीरो से ही करने वाले हो तो आपके लिए अच्छा क्या है। इट्स लाइक दैट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इजी एंड डिफिकल्ट। हाँ, कि कौन सा कोर्स सबसे इजी है, इजी एंड कौन सा कोर्स डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट। आई ऑलवेज टेल द पीपल कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, लाइफ में करना क्या चाहते हो। मतलब जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ उनको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि बंगले में रहना है कि झोपड़ी में रहना है। ओके। अगर झोपड़ी में रहना है तो 2 दिन में झोपड़ी बन जाएगा, बंगले में रहना है तो 2 साल लगेंगे। तो आपको करना क्या है लाइफ में। तो डिफिकल्ट इजी मत देखो, आपको क्या करना है और वो करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा वो आप देखिए। राइट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है क्वेरी। टाइम देखिए कैसे कि अगर आप टाइम नहीं देते हो तो नहीं होगा ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल रोज हम घर पे खाना बनाते हैं तो उसके लिए समझो 1 आवर लगता है, बट जब त्योहार होता है तो 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि त्योहार का खाना अलग होता है। तो इट टेक्स टाइम और वो डिलीशियस होता है, वो अलग होता है, वो रोज नहीं बनता है। तो कोर्सेस में भी ऐसा ही है कि आप क्या चाहते हो। बिकॉज ये मैंने आपको क्यों पूछा ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि मैं, बिकॉज मेरा फ्रेंड एक कोर्स कर रहा है मैं भी ये करना चाहता हूँ। वो तो सबसे गलत चीज है। ऐसे आते हैं हम हाँ, स्टूडेंट। गलत इसलिए है कि आपका फ्रेंड जैसा है वैसे आप हो क्या। अभी से फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड को IPS करना है, UPSC देके, तो मुझे मैं भी IPS करता हूं, बट आपका फ्रेंड उतना स्ट्रांग है मेंटली एंड फिजिकली, आप हो क्या। शायद आप IAS के लिए बेस्ट हो, शायद आप IRS के लिए बेस्ट हो, राइट, शायद आप टीचर एज अ टीचर बेस्ट हो, व्हाटएवर, बट ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके लिए अच्छा क्या है। मतलब अभी कैसे होता है कि कोई पर्सन ऐसा होता है कि आप उसको कुछ भी पहनाओ उस पे ऊपर वो जचता है। रीजन हाइट बॉडी कलर ये नहीं है, रीजन ये है कि ही इज एबल टू कैरी दैट कॉन्फिडेंटली। जैसे कि अभी वो रणवीर सिंह है, आप उसको कुछ भी पहनाओ कितना कॉन्फिडेंटली उसे कैरी कर रहा है वो। बट दूसरा कोई पर्सन है हैविंग गुड फिजिक, हाइट एंड कलर एंड एवरीथिंग, बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, राइट राइट, तो वो नहीं जचेगा उसको। तो आपको क्या लगता है आपके लिए अच्छा क्या है, आप कहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, ये आपको देखना जरूरी है। एक और जो क्वेरी आती है कि कौन सा कोर्स जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अगेन जो क्वेरी आपने भी बोला ना कि झोपड़ी और उसका, क्योंकि शायद उनको एक टाइम के बाद नहीं पढ़ना है, अभी वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा करना है जिससे उनको कुछ ग्रोथ मिल जाए। राइट, इट्स बेसिकली उनको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि उनको पढ़ना है।
अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको खुद को सोचना पड़ेगा कि जो भी वो पढ़ेंगे उससे उनको कितना ग्रोथ मिलेगा. इज ही सेटिस्फाइड विद दैट ग्रोथ? देन इट्स ओके. बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस ग्रोथ से तो उनको ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा. इसके लिए मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको. मतलब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मेरे फ्रेंड का एग्जाम्पल है. उसको एमबीए करना था. अब उसके पास 3 ऑप्शंस थे. एक था सीईटी करो, दूसरा कैट करो, तीसरा जीमैट करो. उसने जीमैट सिलेक्ट किया. उस वक्त आईएसबी आया था इंडिया में, आई थिंक 2003-2002 के पहले. उसने 2003 में किया था. तो उसने जीमैट दिया. तो मैंने उसको पूछा कि वाई जीमैट, क्योंकि आईएसबी में उस वक्त कुछ आई थिंक 13 की 15 लाख रुपीस फी भरा था उसने उस वक्त. तो मैंने उसको पूछा कि वाई जीमैट, वाई आईएसबी. तो उसने मुझे बोला कि जीमैट एंड आईएसबी करने की वजह से मुझे जो एक्सपोजर मिलेगा वो बड़ा एक्सपोजर है, मुझे वो चाहिए, इसलिए मैंने वो किया. राइट. ओके. अगर आपको उतना नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल कंपनी में काम करना है, नॉर्मल कॉलेज से कंप्लीट करना है, तो आप दूसरा एग्जाम दे दो. तो आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या चाहिए. तो उस वक्त जस्ट आईएसबी के बारे में उसको मालूमात हो गई थी. एंड ही हैड डन जीमैट एंड डन द एमबीए फ्रॉम आईएसबी. तो ये आपको सोचना है कि आपको किस लेवल पे पहुंचना है. आईएसबी आपको कहाँ पे पहुंचा सकता है, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपको कहाँ पे पहुंचा सकता है, लाइक दैट. एंड इफ यू आर हैप्पी सेटिस्फाइड विद दैट देन दैट इज योर ऑप्शन. अगर नहीं हैप्पी हो तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा जो आपको वहां तक पहुंचाए. बहुत सही आपने बताया. इनफैक्ट मुझे जो क्वेरीज आती है मैं सब अभी आपको पूछना चाहता हूँ. ठीक है. तो एक जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये कोर्स करने के बाद मुझे सैलरी में कितना हाइक मिल जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या व्यूज है? यहाँ पे ना 2 व्यूज है. एक तो उसको एक्चुअली अगर लाइफ में पैसा बहुत कमाना है तो इज हैविंग 2 ऑप्शंस अगेन, बिजनेस एंड जॉब. अगर उसको जॉब में ही ऊपर जाना है तो वहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी है बट वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे उधर ही कंपटीशन ज्यादा होगा. ऑफ कोर्स एक तो उसके पास अच्छा एजुकेशन होना चाहिए एंड स्किल सेट. मतलब उसने आईएसबी से एमबीए किया बट ही इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द स्किल सेट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. उसके पास वो स्किल सेट होना चाहिए. सी एट द एंड ऑफ द डे ना आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं देखता है. दैट इज ओनली द एंट्री वन, एंट्री के लिए. एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या आ रहा है, उससे आप कितना वैल्यू ऐड कर पा रहे हो. yes. खुद के लाइफ में, आपके क्लाइंट के लाइफ में, आपके कंपनी की लाइफ में, वो मैटर ज्यादा करता है. right. तो अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो स्किल सेट है पढ़ाई की वजह से या आपके एक्सपीरियंस की वजह से, और उस स्किल सेट की वजह से कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी विल ऑफर यू गुड हाइक. बराबर. तो सिर्फ ये चीज भूल जाते हैं. हाँ, उनको क्या लगता है कि मींस मैंने ये किया. सी आपको एंट्री मिलेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, बट उसके आगे आपको डेवलप करना पड़ेगा. सी आपको मालूम होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि उसने कहाँ से होटल मैनेजमेंट किया होगा. हमें फर्क पड़ता है कि भाई मैंने तुम्हें जो डिश का ऑर्डर किया है वो टेस्टी है क्या, वो डिलीशियस है क्या, वो मैं सेकेंड टाइम खा सकूंगा क्या, या मैं किसी और को बता सकता हूँ क्या उसके बारे में. तो वहां पे तो स्किल ही इंपॉर्टेंट है ना. तो एंट्री तो मिल गया आपको, स्किल आप सी एंड कंपनी आपको 2 लाख एक्स्ट्रा कब देगी, जब आप कंपनी को 2 लाख से ज्यादा कमा के दे रहे हो. बराबर. अग्रीड. बस वही है. तो आपके पास स्किल ही अच्छा होना चाहिए, तो आपको कंपनी डेफिनेटली हायर भी करेगी, रेज भी देगी अच्छा, एंड आपको मतलब आपको जाने भी नहीं देगी. ओके. जाने भी नहीं देगी. अब एक और क्वेश्चन, टीचर के पर्सपेक्टिव सबसे डिफिकल्ट पार्ट टीचिंग का क्या है? टीचिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट बच्चे को समझना. ओके. क्योंकि हम जिसे पढ़ाने वाले हैं वो उसकी लेवल क्या है, उसको कहाँ पे लैक हो रहा है, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. मैं कितना भी रटवाऊंगा उसको, रट के क्या करेगा, वो समझेगा तो नहीं. तो उसका एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले लेक्चर में मुझे पता चला था कि इनका प्रॉब्लम 9th नहीं है. मतलब मैं ट्रायंगल्स पढ़ा रहा था एंड आई वाज लाइक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको ट्रायंगल के टाइप्स नहीं मालूम है, फीचर्स तो बहुत दूर की बात है. फिर मैंने उनसे बात की, आई रियलाइज्ड कि इनका प्रॉब्लम अलग है. मतलब ये नहीं कि दे आर डल, इट्स नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट डल तो कोई होता ही नहीं है. तो फिर मैं समझ गया, फिर मैंने नोट्स बनाए, नोट्स का प्रिंट आउट निकाला, जेरोक्स करके दे दिया सबको एंड पढ़ाना स्टार्ट किया. इनिशियल फेज में बच्चों को लगा कि सर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा था ना 5th, फिर ये 6th का है, ये 7th का है.
सिक्स्थ खत्म होने के बाद 7th स्टार्ट हुआ ना, दे रियलाइज सर क्या कर रहे हैं। तब मैंने उनको बताया कि देखो ये जो आप कॉन्करेंट लाइंस जो आप 9th में पढ़ रहे हो वो 6th में हुआ है ऑलरेडी आपका। तो एक तो आपको उस वक्त समझा ही नहीं था या आप भूल गए हो। ये बहुत सही बात बोली आपने कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, क्योंकि वो किस तरीके से कोर्स में एंटर कर रहा है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा, तभी आप उसको गाइड कर हाँ, पाओगे। और उसके पेन मतलब उसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब उसका प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये कंसेप्ट है, लेकिन आप उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। या फिर उसका प्रॉब्लम कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट समझा है, इंग्लिश में कैसे बोलूं, तो उसका इंग्लिश प्रॉब्लम है। राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल कहाँ पे लैक हो रहा है। एक बार वो समझ के तो आप कर सकते। इवन क्लाइंट में भी, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसे आपका इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, उसे कितने रिटर्न्स चाहिए, वो क्या सोच रहा है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। ओके। एंड फिर आप उसको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो। एक एडवाइस जो आपको मिली थी जिसने आपको हेल्प किया, आपके करियर को चेंज किया, ऐसा कोई एडवाइस? एक्चुअली वो एडवाइस नहीं था, मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी लाइफ में, बहुत छोटा था मैं। एक्चुअली गरीबी ना आपको बहुत कुछ पहले ही सिखा देती है, बट उस लाइन ने मुझे खुद पे काम करना सिखाया। और वो लाइन मराठी में है, वो तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इट मीन्स आप ही आपके लाइफ में चेंज ला सकते हो, दूसरा कोई कुछ नहीं कर, वो आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सब कर सकता है, करना आपको है। राइट। यू आर ओनली एबल टू डू द चेंजेस एंड डेवलप यूर सेल्फ, नोबडी एल्स इज। वो हम बोलते ना कि हम मिरर के सामने खड़े हो जाते तो यही आदमी है जो आपको बदल सकता है, आप खुद हो। तो उस लाइन ने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया। मैं समझ गया कि जो भी करना है मुझे करना है, बाकी के लोग मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरे वेल विशर्स होंगे, मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे, एनिमीज होंगे, जो भी होंगे ना, वो मुझे सिर्फ ना धक्का दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं और अच्छा करूं, बट करना तो मुझे है। तो लाइफ में अगर जितना जल्दी हर एक इंसान ये बात समझ जाए ना कि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू फाइट माई ओन बैटल एंड द वॉर, तभी वो पावरफुल बनेगा। अदरवाइज होता क्या कि एवरीबडी इज लाइक कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, मेरे पेरेंट्स गरीब थे, या फिर ये था वो था, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो ये मेरी लाइफ का ये है कि मैंने सीख लिया जो भी करना है मुझे करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये जो कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, नॉट ओनली NISM बट CFA, FRM, बहुत सारे वो रीजंस ढूंढ लेते हैं कि अच्छा मैं पास नहीं हो पा रहा बिकॉज मेरा जॉब बहुत हेक्टिक था, या मेरे साथ ये हो गया। आई नो बहुत सारे डिफिकल्ट चीजें भी हो सकती है लाइफ में, बट जैसा आपने बोला ना कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपको ही फर्क पड़ना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक सो ये जो कॉन्वर्जेशन आज हमने किया ना बहुत हेल्प करेगा, और बहुत ही अलग पॉडकास्ट है। हम जनरली करियर रोल के बारे में बात करते हैं, और हमने जब आपका प्रोफाइल देखा था तो वी थॉट कि आपका एक टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है, और आपने जितना स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इतने सालों में, तो वो आप बता पाओगे इस पॉडकास्ट में। तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस।